So let us start today's class. Yesterday I was discussing mean curvature and Gaussian curvature. So we got one quadratic equation kn square minus bii kn plus b upon g is equal to 0. This was the equation. इसको number 5 कहा था हमने. And this equation is a quadratic equation. It has two roots. The roots of this equation they are called principal curvature. The roots of equation 5 are the principal curvature. K1 and K2. Suppose इनको हम K1 K2 से नोट कर दें. इनका सम जो होगा that is called mean curvature. Sum of the roots K1 plus K2 and sum of the roots of a quadratic is what? Minus b upon a. So a is 1 here. So you have bii. I is running from 1 to 2. So b11 plus b22. And product of roots is called Gaussian curvature or total curvature. Gaussian curvature or total curvature. Product of the roots. इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से. मीन कर्वेचर कैपिटल M and product is denoted by capital K. K1 K2. It is called Gaussian curvature. So product of root is what? C upon A and its quadratic equation ax square plus bx plus c. The product of the roots is C upon A. A is 1, so it is B upon G. ठीक है भाई, ये हमने तो कल किया था लास्ट क्लास में. Next topic we have very few topics are left. Next topic we have principal directions. Principal directions and lines of curvature. Lines of curvature. These are the topics. Your quiz 3 will be covering all these topics. Unit 4 and Unit 3. Keep in mind. So what is principal directions and lines of curvature? So first, principal directions. So the two principal curvatures क्या थे आपके? जो K1 K2 जो curvature की maximum minimum values थी K1 K2 that was principal curvature. So the principal directions कौन सी हो गई? The two directions or at a point for which Kn is maximum or minimum and minima are called the principal directions. Okay. तो किसी भी पॉइंट पे you will be having a curve जिसपे आपके पास kn की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी. उन डायरेक्शंस को हम क्या कहेंगे भी? प्रिंसिपल डायरेक्शंस. ठीक. And line of curvature, this is your principal directions. Definition 2. The curves whose tangent at every point
is along the principal directions. The curve whose tangent at every point is along the principal direction. At that point, are called the lines of curvature. Lines of curvature. Okay. So you got two things. पहले हमने एक्सप्रेशन के एन की सॉल्व करी, तो के एन आपका कर्वेचर वेक्टर था, उससे हमने नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर निकाला था के एन। तो नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर के एन के हमने देखा क्वाड्रेटिक आ रही थी, तो इट विल बी हैविंग टू रूट्स k1 k2। k1 k2 क्या थे? दे आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस kn, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, ये प्रिंसिपल कर्वेचर्स थे। ठीक है, तो टू कर्वेचर वेक्टर्स थे k1 k2। तो टू डायरेक्शंस at the point for which kn is maximum minimum, they called principal direction, and the curves whose tangent at every point is along the principal direction at that point are called the lines of curvature। ठीक है, तो ये आपकी टू डेफिनेशंस हैं। अब इसकी अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें लाइंस ऑफ कर्वेचर के लिए, तो आई विल टेक दैट इक्वेशन जो हमने कल नंबर 4 डाला था, फ्रॉम 4 इक्वेशन आपकी ये थी, के एन इज इक्वल टू p11 प्लस p12 लैम्डा अपॉन g11 plus g12 lambda, this equal to over g12 plus g22 lambda। ये कल एक हमने क्वेश्चन निकाली थी, इसे सॉल्व करके ये वाली क्वेश्चन आई थी 5। तो 4 में हमने ये दिया था, याद हो x अपॉन वाई इज इक्वल टू सॉल्व कर रहा था फिर हमने a प्लस लैम्डा एक्स बी प्लस लैम्डा वाई, उसे सॉल्व करके एक क्वेश्चन आई थी x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी। इसको अगर हम सॉल्व करें, आई वांट टू फाइंड अ क्वेश्चन ऑफ लाइंस ऑफ कर्वेचर, इससे इसे सॉल्व करते हैं। तो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टर्म्स कौन से आएंगे देखिए, g11 b12 g11 b12 माइनस, पहले मैं विदाउट लैम्डा वाई टर्म लिख रहा हूँ, g11 b12 माइनस ये टर्म आएगा एक g12 b11। ठीक है, विदाउट लैम्डा टर्म। देन आई विल राइट लैम्डा टर्म, तो लैम्डा टर्म कब आएगा, g11 b22 लैम्डा, तो g11 b22 एंड वन लैम्डा टर्म इज कमिंग g22 b11। तो देखिए ये माइनस में होगा क्योंकि इस साइड में माइनस g22 p11 lambda एंड देन लैम्डा स्क्वायर टर्म्स क्या होगा, g12 इंटू होगी b22, तो प्लस g12 p22 माइनस g22 b12 g22 b12 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों रेशियोज को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, ऐसे ये टर्म्स लिख दिया। और आई कैन राइट नाउ लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा आई वाज अज्यूमिंग du1 ओवर du2 है ना, बट लैम्डा इज du1 ओवर du2, लैम्डा हमने इसे चूज किया था, du2 ओवर du1 था, du2 ओवर du1। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रखेंगे du2 ओवर du1, तो यहाँ पे du1 स्क्वायर आएगा और इसको उधर ले जाए लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके, तो एक क्वेश्चन आपकी बन जाएगी। तो दिस विल बी g11 b12 माइनस g12 b11, इसके साथ du1 टर्म आ जाएगा स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है, तो एलसीएम ले लिया हमने।
plus G11 B22 minus G22 B11. Here you will be getting Du1 Du2 and plus G12 B22 minus G22 B12. यहाँ रह जाएगा Du2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपकी, यहाँ पर हमने क्या करा, लैम्डा की प्लेस से बस Du2 ओवर Du1 रख दिया है इस इक्वेशन में। ये है विच कैन बी रिटन एज, इसे नंबर 6 कर दीजिए, विच कैन बी रिटन एज, इसे हम अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो आई कैन राइट 3/3 डिटर्मिनेंट बनेगा ये Du2 स्क्वायर माइनस Du1 Du1 स्क्वायर G11 B11 G12 B12 G22 B22 दिस इक्वल टू 0। इसको ओपन कराएंगे, ये देख लिए फर्स्ट टर्म du2 स्क्वायर अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, सपोज आई एम एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, सो du2 स्क्वायर के साथ क्या आएगा, G12 B22 माइनस G22 B12, ये टर्म आ जाएगा ऐसे दिस, तो ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसे याद करने के लिए इस फॉर्म में रख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रिंसिपल डायरेक्शन। 6 और 7 सेम इक्वेशन है, अगर 7 लिख रहा हूँ तो 7 इज सेम 6। दिस इज द इक्वेशन 6 और 7 बोथ 6 and 7 एक ही है दोनों, is the equation for the principal direction, therefore also the differential equation for the lines of curvature, means इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा 6 को या 7 को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, तो इसका सॉल्यूशन आएगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, दे विल बी सम कर्व, वो जो कर्व आएंगे वो आपके लाइन ऑफ कर्वेचर होंगे, इसका सॉल्यूशन। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ कर्वेचर। अब जो इनके कर्व्स आएंगे, सब जो डायरेक्शंस कर्व क्या आएंगे, ये डायरेक्शंस है बेसिकली, है ना, 2 डायरेक्शंस है आपकी। लेट दीज डायरेक्शंस बी du1 अपॉन du2 एंड del u1 ओवर del u2। सपोज डायरेक्शंस ये हैं दो आपकी, किसकी, मैक्सिमम कर्वेचर और मिनिमम कर्वेचर की ना। सपोज ये k1 की थी, k2 की। सपोज दीज डायरेक्शंस आर देयर, देन it can be verified that they satisfy the relation, एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस रिलेशन को G11 du1 ओवर du2 del u1 ओवर del u2 प्लस G12 du1 ओवर du2 प्लस del u1 ओवर del u2 प्लस G22 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्शन इनको होल्ड करेंगी, क्योंकि आपके पास क्या है, k1 k2 में देखो, तो सम ऑफ द रूट्स आपका वही है, इसका सम अगर आप लेंगे तो ये होगा b11 प्लस b22, प्रोडक्ट होगा b अपॉन g। इसे यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। और ये क्या चीज है, ये हमने पीछे एक प्रॉब्लम में सॉल्व करी थी, विच इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for them to be orthogonal। Two directions are orthogonal if and only if this holds true। ये हमने प्रॉब्लम्स में पीछे सॉल्व किया हुआ है।
तो अगर डायरेक्शंस हैं आप इसमें रखेंगे इनकी वैल्यू तो यू विल सी दैट दे आर कमिंग 0 LU1 ओके so it means what hence we have proved this result hence the result क्या रिजल्ट है थ्योरम थ्योरम लिख सकते हैं आप फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम थ्योरम 1 कर देता हूँ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस there pass two lines of curvature which are orthogonal perpendicular if you have a point from any point on the surface पे कोई भी पॉइंट अगर है तो उस पे टू लाइंस ऑफ कर्वेचर पास होंगे इस तरीके से है ना टू लाइंस ऑफ कर्वेचर विच आर ऑर्थोगोनल जो आप क्या होंगे आपस में ऑर्थोगोनल होंगे अगर मैं इसके बीच में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ऑर्थोगोनल ये चीज यहाँ पर शो हो गया ठीक ये सब रिजल्ट ध्यान रखते हैं कि लाइन ऑफ कर्वेचर्स आर ऑर्थोगोनल ना ये हमने यहाँ पे शो करा है कंडीशन बेस्ड ऑन दिस वी हैव वन more theorem the lines of curvature are the lines of curvature are parametric curves are parametric curves depend only if G12 is equal to 0 is equal to B12 लाइंस ऑफ कर्वेचर पैरामीट्रिक कर्व हो जाएंगे अगर ये हो जाए ये एक थ्योरम है प्रूफ देखें इसका सॉल्यूशन प्रूफ पैरामीट्रिक कर्व्स क्या थे याद है भाई किसी को व्हाट आर पैरामीट्रिक कर्व्स एनीवन बताइए रखकर यूट्यूब से कर्व क्लिप खींच है बनाया जाता है जोर से बोलिए बस रहा जी जब तक उसमें पैरामीटर u1 को कांस्टेंट रखकर u2 से कर्व बनाया जाता है तो u1 हाँ कर्व कहलाता है सही इसी तरह जब u2 को कांस्टेंट रखकर u1 से ठीक बनाया जाता है उसको u2 कर्व कहते हैं ठीक बशरा आलम ने सही जवाब दिया पैरामीट्रिक कर्व्स आपको याद होगा आप हमने जब पढ़ा था कि अगर आप एक सरफेस ले लें तो सरफेस पे आपके पास पैरामीट्रिक कर्व कुछ इस तरीके से लाइन से मैं कर सकता हूँ इसको तो आपके पास जो u1 कांस्टेंट है क्योंकि हमारे पास सरफेस क्या है बेसिकली सरफेस इज जस्ट अ मैप फ्रॉम अ शीट है ना फ्रॉम अ प्लेन शीट ऑफ पेपर कह सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है कुछ वाई के तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वहाँ पे u1 कांस्टेंट होता है u2 तो सेम थिंग इज हियर इफ यू हैव a line which is corresponding to u1 constant and second line corresponding to u2 constant तो वो जो कर्व्स होते हैं वो हमारे पैरामीट्रिक कर्व्स कहलाते हैं तो वो भी ऐसे हो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो उस पर आपके पास टू कर्व्स मिलते हैं ना u1 कांस्टेंट u2 कांस्टेंट और यहाँ पर भी ये हो रहा है कि एक पॉइंट पे यू आर गेटिंग टू लाइंस ऑफ कर्वेचर अब रिजल्ट ये है कि ये लाइन ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल कर्व्स हो जाएंगे अगर ये कंडीशन होल्ड होती है ये हमें शो करना है क्लियर है बात तो पहले वन साइड लेके चलते हैं लेट द लाइंस ऑफ कर्वेचर
हमने अभी शो करा है लाइंस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना, अभी पीछे थ्योरम करिए, विच आर परपेंडिकुलर, लेट दीज बी पैरामीट्रिक कर्व, बी पैरामीट्रिक कर्व, ये हमने एज्यूम करा। तो हमें मालूम है कि अगर पैरामीट्रिक कर्व्स परपेंडिकुलर हैं तो G12 0 होता है ना, ये रिजल्ट है, ये हम पीछे शो कर चुके हैं जब हमने पैरामीट्रिक कर्व की बात करी थी। G12 इज 0, तो G12 तो 0 हो गई होगा, P12 0 और शो करना है हमें, ये शो करना ना इफ एंड ओनली इफ। तो आई हैव टेकिंग वन साइड, तो अगर लाइन ऑफ कर्वेचर पैरामीट्रिक कर्व है और लाइन ऑफ कर्वेचर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब पैरामीट्रिक कर्व्स आर परपेंडिकुलर, सो G12 इज 0, है ना, इट इज ऑब्वियस। नाउ आई विल शो व्हाट अबाउट B12, क्योंकि दोनों चीजें शो करनी है। चलिए नाउ अब कुछ पैरामीट्रिक कर्व की प्रॉपर्टी लेंगे हम। नाउ इफ du1 is 0 या du2 is 0, क्योंकि पैरामीट्रिक कर्व में अगर u1 कर्व है तो u2 कांस्टेंट, तो du2 0 हुआ। अगर du2 0 है तो n फ्रॉम 6 इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर मैंने लिखी थी अभी, आपको ये बताया था, है ना, 6 इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ ये 6। अब यहाँ अगर du2 0 है, देखिए तो आपका यहाँ पे du2 टर्म आ रहा था तो सेकंड टर्म 0, और ये du2 था, ये 0, तो यू हैव ओनली 6 इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट थिंग रह जाएगी, है ना। और फर्स्ट में भी बिकॉज G12 इज 0, G12 भी 0 है, तो यू हैव ओनली G11 B12, so from equation 6 we get G11 B12 is equal to 0, है ना। यहाँ 6 आप देख सकते हैं, ये टर्म 0 हो गया क्योंकि du2 0, ये 0, और G12 0 था, तो आपके पास सिर्फ G11 B12 0 आएगा, ठीक है। इससे सपोज मैं ए कह देता हूँ, इफ ये था आपका U1 कर्व, U2 कर्व के लिए du1 की पैरामीट्रिक कर्व है, तो दूसरा कर्व आपका du1 0 होगा। अगर du1 0 होगा देन फ्रॉम 6 वी गेट, अब देखिए 6 में du1 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, दिस टर्म होल 0 एंड दिस टर्म 0, अब ये बचेगा, यहाँ पर भी G12 0 है, तो यू हैव ओनली G22 B12, है ना, तो यू गॉट G22 B12 is equal to 0 B। कीप इन माइंड हमें शो करना है B12 0, अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0 है, तो इधर G11 0 B12 0, तो आई विल शो के इनफैक्ट इन दोनों में B12 ही 0 होगा। चलिए अब यू नो G क्या होता है, G11 G22 माइनस G12 स्क्वायर, है ना, और ये हमने शो किया है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हम रेगुलर कर्व लेते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ना निगेटिव होगा, और G12 इज ऑलरेडी 0, so it means what, G is only G11 G22 greater than 0, है ना, G12 तो 0 है ही हमारे पास ऑलरेडी, तो अब ये अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हुआ, G11 कैन नॉट 0 एंड G22 कैन नॉट 0, so from A and B what you got, hence A and B, A and B implies that B12 must 0, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0 और हमने इस रिजल्ट से निकाला कि बोथ आर नॉन 0, सो B12 मस्ट 0, तो वन साइड इज डन, G12 0 ऑलरेडी था और B12 भी 0 आ गया, ठीक है। कन्वर्सली क्योंकि इट इज इफ एंड ओनली, तो कन्वर्सली हम इसे इजीली शो कर सकते हैं, कन्वर्सली लेट, अब आई विल अज्यूम G12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B12, तो हमें शो करना है कि लाइंस ऑफ कर्वेचर्स आर पैरामीट्रिक कर्व्स, तो जब आपका ये 0 होगा देन फ्रॉम 7 वी गेट 7 इक्वेशन जो लाइंस ऑफ कर्वेचर डिटरमिनेंट वाली लिखी थी मैंने, ये अब आपके पास क्या है, G12 0 B12 0, तो ये एक कॉलम, इसकी दोनों एंट्री 0 है, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या जाएगा, du1 du2 इज इक्वल टू 0, है ना, जब यहाँ पे पुट करेंगे 0 0
एक्सपेंड करोगे तो आपके पास इससे क्वेश्चन क्या आएगी, du1 to 0, we get du1 du2 is equal to 0, एंड ये आपकी पैरामीट्रिक कर्व की क्वेश्चन होती है, विचार पैरामीट्रिक कर्व। इसका मतलब क्या है, इधर du1 0 और du2 0, यानी कि u1 कर्व और u2 कर्व, तो ये पैरामीट्रिक कर्व होती है, विचार पैरामीट्रिक कर्व। ओके, तो ये रिजल्ट था कि लाइंस ऑफ कर्वेचर are parametric curves if and only these G12 and B12 are zero. Next we have Roderick's formula. Roderick's formula. रोड्रिक के नाम से फॉर्मूला है, बेसिकली एक रिजल्ट है जिसे फॉर्मूला कहते हैं। थ्योरम है ये, द डायरेक्शन du1 is to du2 is a principal direction if and only if dn plus k dr is equal to 0. इक्वेशन 8 कर देंगे। एंड देन अगर du1 कोई भी डायरेक्शन को अगर आपको चेक करना है कि वो डायरेक्शन प्रिंसिपल डायरेक्शन है या नहीं, है ना, प्रिंसिपल डायरेक्शन कौन सी, ये जो डेफिनेशन लिखी थी अभी, ये kn इज मैक्सिमम मिनिमम, तो उसके लिए क्या रिजल्ट है कि dn प्लस k dr इज 0। dn क्या आपका वही dn डिफरेंशियल ऑफ दिस n1 n1 dr, क्या लिखते हैं, n1 r1 प्लस n, ये लिखते हो हाँ, n1 r1 प्लस n2 r2, ये है dn, है ना, जैसे df होता है आपका डिफरेंशियल ऑफ n, इज दिस इक्वल टू 0, एंड देन k, और k क्या है, एंड देन k इज द principal curvature in that direction, and then k is the principal curvature of in this direction। एक रिजल्ट है कि अगर कोई डायरेक्शन du1 du2 है तो आपके पास ये रिजल्ट होल्ड होगा। देखिए इसका प्रूफ सिंपल है, बस सिर्फ जरा सी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो हमने माना फर्स्ट साइड लेट du1 du2 बी द वन साइड, आई एम अज्यूमिंग लेट du1 is to du2 be the principal direction, then the expression 4 giving the principal curvature k, principal curvature k can be written as 4, ये वाली इक्वेशन आपकी सबसे पहले जो मैंने कहाँ लिखी थी 4, ये थी 4, ये इक्वेशन 4 है आपकी, के एन इज इक्वल टू दिस, जो रेशियो में निकाला है। अब यहाँ पर अगर के कह रहे हैं प्रिंसिपल कर्वेचर को, तो यहाँ के रख दो, तो के इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, इससे ही हम रिजल्ट निकालेंगे। तो इसको अगर मैं यहाँ पर के रख के सॉल्व करूंगा तो दो इक्वेशन बनेंगी। देखिए आपको इसे लास्ट कल क्लास में किया था, पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और फिर फर्स्ट और थर्ड रेशियो लूंगा, बस के एन की जगह के है यहाँ पर हाँ प्रूफ में। तो जब मैं फर्स्ट के इज इक्वल टू दिस इक्वेट करूंगा तो एक क्वेश्चन बनेगी के G11, देखिए, तो दिस विल बिकम, नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। इट इज योर के इज इक्वल टू, के एन की जगह के रख दिया, B11 प्लस B12 लैम्डा अपॉन
g11 plus g12 lambda this equal to b12 plus b22 lambda upon g12 plus g22 lambda। ये क्वेश्चन 4 थी, kn की जगह k। तो पहले फर्स्ट k is equal to this I will take, it will give you kg11, this implies that kg11 और माइनस लैम्डा की जगह हम पुट कर रहे हैं वैल्यू du1 अपॉन du2। लैम्डा क्या था यहाँ पर, सॉरी du2 अपॉन du1, लैम्डा du2 अपॉन d1 है। तो kg11 माइनस b11 du1 प्लस kg12 माइनस b12 एंड du2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन जाएगी, देखिए kg11 माइनस b11 और लैम्डा की वैल्यू रख दी du2 अपॉन du1, तो du1 यहाँ साथ में आ जाएगा इसके। और ये अब आई एम टेकिंग नाउ फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, इट विल गिव यू सिमिलरली एंड kg12 माइनस b12 du1 प्लस kg22 माइनस b22 दिस इज du2 इज इक्वल टू, ठीक है। फर्स्ट एंड ये दोनों रेशियो लिए तो फर्स्ट इक्वेशन, ये लिए सेकंड। अब हमें n वगैरह लाना है तो मैं g1 की वैल्यू सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे प्रूफ में dn और dr लाना है। dr का मतलब क्या है आपका, डिफरेंशियल ऑफ r। तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ g1 इन टर्म्स ऑफ r। तो यू नो दिस कैन बी रिटन एज फर्स्टली दिस। तो g11 की वैल्यू क्या होगी r के टर्म्स में, याद है r1 डॉट r1 है ना, gij इज ri डॉट rj प्लस b11 इज हाउ मच, n1 डॉट r1, bij था माइनस ni डॉट rj, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस n1 डॉट r1। इनके फॉर्मूलाज लगा रहे हैं बस अब हम यहाँ पे। ये आपका हो गया फर्स्ट ब्रैकेट du1 प्लस सिमिलरली k g12 विल बी R1 dot R2 r1 डॉट r2 एंड दिस इज b12 इज माइनस साइन के साथ होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा n2 डॉट r1। ओके, du2 is equal to 0। Similarly, now this one kr1 dot r2 plus n1 dot r2 du1 plus k g22 is r2 dot r2 plus n2 dot r1 माइनस साइन के साथ होता है du2 is equal to 0। और इसको थोड़ा सा अरेंज करें क्योंकि मुझे dn बनाना है, तो आई कैन राइट, देखो n1 का टर्म लेता हूं मैं, n1 du1। देखो r1 तो सब में आ रहा है, r1 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 r1, r1 को बाहर ले लेंगे, n1 du1 पहले ये टर्म लिया, n1 du1, ठीक है, इसको लिख रहा हूं अब मैं पहले, फर्स्ट जो चल रहा था, प्लस n2 du2, n2 du2 du2, ये तो आपका हुआ इसका टर्म। अब r के टर्म लिखते हैं, प्लस r के साथ k था, तो k आउटसाइड r1 du1 है ना, ये एक r1 तो बाहर ले लेंगे, k लिया तो r1 du1 और प्लस k यहाँ पर आउटसाइड है r2 du2 और इस पूरे के बाहर है r1। आई एम टेकिंग आउटसाइड r1 फ्रॉम होल इज इक्वल टू r1 सब में, ठीक है। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट ये वाला, इट विल बी n1 du1 प्लस n2 du2 प्लस k टाइम्स r1 du1 plus r2 du2 and whole outside r2 is equal to 0। ये सब वेक्टर्स है ना, क्योंकि अब इसमें सब में r2 था, r2 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 और यहाँ पर भी था आपका ये n2 डॉट r2 था, ये r2 था है ना, क्योंकि b22 है r2। अब ये क्या है n1 du1, देखो इट इज योर dn, तो दिस इज व्हाट, दिस इज
actually, and n1 du1 plus n2 du2. It is your dn, differential plus k dr or dot r1 is equal to 0, है ना. Similarly, it is what, ये differential ये भी same ही है, dn plus k dr dot r2 is equal to 0, है ना. सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया. ये पूरा क्या है, ये dn है, डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन f1 dx plus f2 dy. ये तो n1 du1 n2 du2. So you got this. So hence that means you got dn plus k dr dot r1 is equal to 0 and dn plus k dr dot r2 is equal to 0. So जब both is 0, this implies that dn plus k dr, it is what, perpendicular to r1 and r2. ये आ गया, है ना. इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि dn plus k dr is parallel to वेक्टर n, क्योंकि ये r1 क्रॉस n क्या होता है, n is what, r1 क्रॉस r2 अपॉन मॉड ऑफ r1 क्रॉस r2. फिर क्लास में कंटिन्यू करूंगा, अभी अगर एंड हो जाएगी तो फिर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग सारे, ठीक है, जितनी देर भी चलेगी. ओके सर. हाँ, तो dn plus k dr पैरेलल टू n, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इट इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस, तो इट इज पैरेलल टू r1 क्रॉस r2, सो इट इज पैरेलल टू n. बट सिंस dn plus k dr